अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, आवाज आ रही है। जी मैडम आ रही है। चलें, प्रेजेंटेशन शुरू करें। Yes ma'am. My patient Laiba, wife of Wajahat, 24 years of age, married since 4 years, with last child born 1.5 year back. She's a Quran teacher, resident of Prince Road, Rawalpindi, and her husband did a private job in Saudi Arabia. Who is 34 years of age, consanguinely marriage, and first both partner have the first marriage. Her blood group is B positive. She was admitted to outpatient department of Akbar Niazi Teaching Hospital on 17th of July 2026 with her last menstrual period as she was unsure of dates and expected date of delivery is 24th of October 2026. She is gravida 3 para 2 plus 0 at 26 plus 0 weeks by 10 plus 5 weeks scan. She is presented, her presenting complaint is she is admitted for the fetal-maternal surveillance in view of itching on palms of hand and the soles of feet since 2 weeks and decreased fetal movement since 2 days. Regarding history of presenting illness, HOPI, this is a spontaneous planned pregnancy, which was confirmed by the urine pregnancy test, which was done when she missed her cycle after 10 days. She consulted to the private clinic in Barakpur, where her blood test and urine test were done. According to her, labs were normal, but no record was available along with her. She took tablet folic acid 5 mg during first trimester. There is no history of any significant history of nausea, excessive nausea, vomiting during pregnancy, and flu-like symptoms, any abnormal rash, PV bleeding, PV leaking, and any PV discharge during first trimester. She herself booked to the Akbar Niazi Teaching Hospital at start of 4th month of gestational age, where her lab blood test and urine test were done and booking ultrasound was also done. According to her, ultrasound shows single intrauterine pregnancy with positive fetal cardiac activity, and her booking blood pressure was also normal. Afterwards, her anomaly scan was done, which was also normal according to her. She started having perception of fetal movements uh, at the at 5th month of gestational age, which remains normal um, till 2 days ago. Now, since 2 days, she experiences decreased fetal movement. She had only three, she had the perception of three movements in 10 hours yesterday. Her oral glucose tolerance test was done, which was not within normal range according to her. She was advised tablet Loprin 70 Loprin at the 5th month of gestational age. Her second trimester remained uneventful. She does not give any significant history of blurring of vision, epigastric discomfort, and any headache, PV discharge, PV leaking, and PV bleed during second trimester. At the start of during the start of the third trimester, she experiencing itching on the palms of hand and soles of feet since 2 weeks at 24 week of gestation. 24 plus 1 week of gestation, due to which her sleep was disturbed. Since 2 to 3 days, she was unable to sleep even at night. Itching is particularly on the hand joints and the soles of feet and the skin between the finger that is not associated with any abnormal rash. She does not give any significant history of a bulky or heavy stools, and also does not give history of any itching in the same history of itching in any previous pregnancy. She does not give any history of OCP's intake and their associated itching. And she does not give any history of itching in pregnancy, itching in pregnancy to any other family member. And also, there is no history of any itching disorder like this in any family member.
She denies any history of application of local applicants during this pregnancy or previously, and she does not give history of yes, she does give history of dark color urine on and off since 2 weeks, but does not give history of dark stools. She gives history of she does not give history of any drug allergies, allergy to any food, particular food items, and also does not denies any known skin allergies. She does not give history of loss of appetite and vomiting with the food intake, and also does not give any history of pain abdomen. And she denies any history of close contact with hepatitis B and C positive patient in family, and no significant history of any blood transfusion and IV drug abuse, IV drug usage recently. She does not give any history of a pain abdomen and particularly associated with the oily food intake. And however, regarding mode of delivery and time of delivery and contraceptive method has not been discussed yet with her. And now, during her hospital stay, a certain lab investigations were done, and a few labs reports are awaited. Her feto currently here in the ward, in antenatal ward here, feto maternal surveillance. Her fetal maternal surveillance is done in the form of fetal heart monitoring done daily. With CTG and fetal tick chart count monitoring done twice daily, and ultrasound for fresh parameter and biophysical profile is done, and she is on conservative measurements also taken, and vigilant monitoring is also continue, and on on बात conservative करना measurements. ये तो मैनेजमेंट के Uh, हिस्ट्री में Yes, ma'am. Okay. Okay. And regarding past obstetrical history, in 2023, at 8 months of gestational age, she herself, this is her supervised pregnancy, and she herself booked to the Al Razi Hospital, Pindi. And at 8 months of gestational age, she delivered a male child. Uh, mm, she delivered a male child, give history of taxi delivery, followed by stillbirth, and and she gave history of some skeletal deformities and water in the baby's tummy, and probably it could be hydrops fetalis, and she gave no history of antepartum and intrapartum complications, and she was counseled regarding the anomalies of baby, but both partners refused for the termination of pregnancy. Afterwards, she gave history of postpartum depression. For that, she was admitted in the hospital for 3 months, and electric shock was given to her. In 2025, since 1.5 year back, her pregnancy was supervised, and she herself booked to the Akbar Niazi Hospital. And at 6 months of gestational age, she delivered a female child. Was delivered by by medical termination of pregnancy was done, and due to sudden intrauterine death, and that baby was also have some anomalies, but no record was available, and mother even does not know what pathology was present in her last baby. And later on, no placental tissue was sent for karyotyping and invasive testing, and no antepartum and intrapartum postpartum complication afterwards. And and third pregnancy is her current pregnancy. Regarding gynecological history, age of menarche was 13 years of age, and her cycle was regular with normal flow. She used to bleed for 6 to 7 days, and 6 to 7 days with every flow. There is no significant history of intermenstrual bleed and postpartum bleed and dysmenorrhea, dyspareunia. She was not practicing any method of contraception. She was not never be screened for the pap smear. Regarding her past medical history, she, she gave history of some she gave significant history of postpartum depression. For that, she was treated by electric shock, and she was has been remained admitted 3 months in वो some मैट्रिक private ना setup. करें
तो वो Okay, okay. And regarding past surgical history, does not give any significant history of any surgical procedure. Regarding family history, hypertension, give positive history of hypertension in both parents, and there is no significant history of tuberculosis, asthma, diabetes, and in family. But she does give history, positive history of tuberculosis in husband 10 year back. No history of anomalous baby in family, and any blood no history of blood transfusion and thalassemia in the family. Regarding drug history, she is not allergic to any any drug, does not give any drug allergies significant. So regarding socioeconomic history, she lives in her own house with 8 family members, and 6 rooms were in the house, and that were properly ventilated, and she used filtered plus and bore water for the drinking purposes. She is does not give any history of cigarette smoking, any drug or recreational drug abuse, and she has regular sleep, which was disturbed since 2 weeks, and normal bowel habits, and no history of the weight loss. On general physical examination, a young lady is sitting comfortably, is lying on bed, well oriented, conscious and well and oriented in type, place, and person. And her BMI is, एक मिनट मैम, sorry. Her BMI is 27 kg per meter square. Her vitals are BP is 130 by 90, pulse was 86 beat per minute, and temperature was afebrile. Respiratory rate was 16 beats per minute. On general physical examination, there is no significant findings of jaundice, anemia, cyanosis, chylomicronia, leukonychia, and pedal edema, and were not appreciated. Thyroid was normal, and all accessible lymph nodes were not palpable. There is positive signs of scratch marks seen on the finger joints and skin between the fingers, and there is no abnormal rash were appreciated. Her oral dental hygiene was satisfactory, and signs of the chillosis were seen, were present, and uh, and on general and regarding ma'am. systemic examination होता है. जी मैम. On systemic examination, her bilateral breasts were in equal symmetry, and there is a bilateral breasts were in equal symmetry, no nipple retraction, and no nipple retraction, and any abnormal discharge was seen. And no redness appreciated, no lump was palpable in all 4 quadrants of the breast. Axillary lymph nodes were not palpable. Regarding cardiovascular examination, apex beat was felt in fifth intercostal space. No heart murmur were audible, and normal S1, S2 heart sounds were audible. Regarding respiratory system, bilateral chest shows equal symmetry without any gross deformity. Normal vesicular breathing was appreciated in all quadrants of the breast bilaterally. On per abdominal examination, abdomen was moving symmetrically with respiration. Linea alba was seen, and with centrally placed umbilicus, and which was inverted, and all hernial orifices are intact. On regarding on per abdominal examination, our symphysiofundal height was 24 centimeters, single alive fetus with longitudinal eye, and with breech presentation. Estimated fetal weight was around 1.2 to 1.7 kg. Clinically, like seems to be normal, and her fetal heart rate is audible, was normal. But sorry, her fetal heart rate were positive. That's it, ma'am. जब आपका ना टाइम बिल्कुल मैनेज नहीं हुआ इसमें, ठीक है, आपकी जी मैडम. हिस्ट्री जो है ना वो बड़ी, वो प्रेजेंटेशन लंबी हो गई है, ठीक है. अब वो लंबी जी में मैडम. क्यों हुई है? क्योंकि आपकी रिपीटेशंस चीजों की काफी ज्यादा थी, ठीक है. जी मैडम. कुछ जी चीजों को जी. जब आप मैनेजमेंट बताने लगी, वहां मैंने आपको रोक दिया, क्योंकि वो टाइम, वो तो अभी हम आगे होगा ना, कि वो तो सर्विलेंस के लिए बस एडमिट हुई हुई है, ठीक है. ओके. इतना ओके काफी मैडम. है कि वो एडमिट क्यों हुई हुई है. अच्छा, रिपीटिशंस चीजों की काफी ज्यादा थी,
जैसे आपने जी मैडम। स्क्रैच, इचिंग और उन सारी चीजों को पहले शुरू में भी बताया, फिर बीच में दोबारा बताया। ठीक है, तो रेपिटेशन चीजों की नहीं करें, ठीक है। दूसरा जो आपने एक उसका एडमिशन की बात जो बताई कि वो इचिंग की वजह से एडमिट हुई थी, और और किस डिक्रीज वजह से, एक और भी चीज थी जो आपने एंड पे बताई है। डिक्रीज फीटर मूवमेंट सिंस 2 days। हाँ, ये आपको स्टार्ट में बताना चाहिए था, क्योंकि वो प्रेजेंटिंग कंप्लेन भी थी ना उसकी साथ में, जी जी यही जी थी जी कि वो मैडम। 2 दिन से उसको फीटल मूवमेंट भी नहीं है। ये बड़ी देर के रिसेंटली मैडम। बाद आपने बताया। ठीक है, तो आपकी जी मैडम। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट बेसिकली दो थी, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आ रहा था सिर्फ इचिंग की वजह से उसको क्यों एडमिट की है। ठीक है, उसको जी एडमिट मैडम। बेसिकली डिक्रीज फीटल मूवमेंट की वजह से किया गया है। शी इज नॉट जी मैडम। एडमिटेड फॉर इचिंग, इचिंग वाले पेशेंट को हम एडमिट नहीं करते। ओके मैडम। ठीक है, तो मुझे शुरू से लेके समझ नहीं आई कि वाई शी वॉज एडमिटेड। सिर्फ फीटो मैटरनल सर्विलेंस इचिंग और उसके लिए तो कोई भी एडमिशन नहीं कर बनता ही नहीं है, बट शी वॉज एडमिटेड ड्यू टू डिक्रीज फीटल मूवमेंट्स। ओके मैडम। सो आपकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट बड़ी बाद में जाके समझ आई कि ये एडमिट क्यों हुई हुई है। ओके मैडम। ठीक है, मैडम इस चीज का जिक्र कहाँ करना चाहिए था कि मैंने फीटर मूवमेंट्स तो बिल्कुल बतानी है कि स्टार्ट में। परसेप्शन ऑफ फीटर। देखिए ना, आपने तो जब ट्राइमेस्टर वाइज हिस्ट्री लेना जी शुरू जी। की, तब और आपने वहां ये जिक्र चीज करना है मेंशन की। कि शी हैज एक्सपीरियंस हालांकि डिक्रीज फीटर देखिए, मूवमेंट। हम जी जी। आप मुझे खुद बताएं, इचिंग ऑन पाम वाले पेशेंट को हम एडमिट करते हैं? नो मैडम। नहीं करते नहीं। तो नहीं इसकी करते नहीं करते। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट थी कि शी हैड अ डिक्रीज फीटल मूवमेंट, जिसकी वजह से इसको सर्विलेंस के लिए एडमिट किया गया। ठीक है, सो ये जी बहुत मैडम। इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको आपने प्रेजेंटेशन में बताना था, क्योंकि जब तक आपने डिक्रीज फीटल मूवमेंट नहीं बताया, तब तक मुझे ये समझ नहीं आई कि ये पेशेंट क्यों एडमिट है। जी ठीक है, मैडम ठीक हो गया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपने स्टार्ट में बताना है। उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है कि 2 दिन से उसको हरकत महसूस नहीं हो रही, खारिश तो उसको पता नहीं कब से है। अच्छा, जी मैडम अब ठीक हो जब गया। आपने दो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हो गई, ठीक है, जी मैडम। तो उसको आपने एक ही दफा एक्सप्लेन करें, बार बार एक्सप्लेन ना करें। आपने इचिंग को शुरू में भी बताया, आपने इचिंग को फिर अंदर भी कहानी में भी बताया है। तो वो नेसेसरी नहीं था, कहा जब आपने ट्राइमेस्टर वाइज बतानी शुरू की ना स्टोरी, तो जी उसमें जी। फिर दोबारा से इचिंग को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अपना टाइम वेस्ट ना करें। ओके मैडम ठीक हो एक गया। ही दफा में इचिंग को सारे जो कॉजेस को रूल आउट करना है वहीं भी बता दो। आपने कहा कि जी वो 26+2 वीक्स पे इचिंग के साथ ही ये पाम एंड सोल्स के ऊपर जॉइंट्स के अंदर उसको थी खारिश। वहीं पे ही आप उसको एक्सप्लेन करें कि उसको कोई एलर्जी नहीं है, उसको कोई स्किन डिजीज नहीं है, उसकी फैमिली मेंबर में किसी को इचिंग नहीं है। ये जो जुमला ना आपने बताया है, लेकिन वो इस अंदाज में स्टोरी में जब आपने ट्राइमेस्टर वाइज स्टोरी सुनाई, जी उसमें जी। आपने उसको थोड़ा सा हल्का सा टच किया, लेकिन आपने मैडम इसको। जी, सॉरी। जी मैडम सॉरी, मैं ये आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जहाँ ये मैंने जिक्र किया है कि जहाँ इसको ये प्रॉब्लम शुरू हुई है कि सिंस 2 वीक इसको इचिंग स्टार्ट हुई थी, और उसी स्टोरी के साथ ही मैंने ये बात बताई है कि ये जो इचिंग है इसको इसके साथ इसकी स्लीप डिस्टर्ब है, और साथ ही मैंने ये वाला जिक्र और आगे डिफरेंशियल्स भी इसी के साथ रूल आउट किए हैं। मुझे यहाँ ये एक्सप्लेन करना चाहिए था या स्टार्ट में ये बात करनी चाहिए थी ये इचिंग वाली? स्टार्ट में ही बात करते हैं, वही मैं आपको कह रही हूँ ना, अच्छा। इचिंग को ओके बार ओके। बार टच ना करें। ओके इचिंग को बार बार इचिंग नहीं आपकी होगा। बार बार बीच में आ रही है, तो सिर्फ एक ओके। बार बता दें कि जी उसके साथ ये चीजें नहीं है। ठीक है, और उसी के साथ सारे डिफरेंशियल्स भी मैडम वही रूल आउट कर लूँ कि जहाँ वही इचिंग की स्टार्ट प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के साथ ही बता दें, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के साथ ही। वहीं पे ही बता दें। इट इज नॉट नेसेसरी कि जब आप ट्राइमेस्टर वाइज में जाएं तो वहां बताना है। ठीक है ओके मैडम ठीक हो गया। ठीक है, डिफरेंशियल भी रूल आउट करने ओके लेकिन मैडम ठीक। उसके साथ इम्पोर्टेंट ये, जिस चीज के लिए वो एडमिट हुई है वो डिक्रीज फीटल मूवमेंट्स है। इचिंग की वाले मोमेंट्स है। पेशेंट को हम एडमिट नहीं करते हैं।
श्योर मैम। ठीक है, उसको हम ओपीडी बेसिस पे बुलाते हैं। So basically, your patient is presenting complaint is decreased fetal movements and itching. ठीक है। अच्छा, और उसके बाद आपने बहुत क्लियरली वेरी स्टार्ट में बता देना है कि शी हैड नो अलाइव इशू। ओके। यस मैडम। ये आपके बायोडाटा में ही पता होना चाहिए। शी इज ओके ग्रेविडा 3, पैरा 1 और अबॉर्शन 1 है। मैडम, ये फिर पीरियड ऑफ पैरिटी में कैसे वो पैरिटी में आया कि ये ट्वेंटी आपने फोर 6 मंथ्स में टर्मिनेशन बताई है ना। 6 मंथ में बताया, लेकिन वो वाइबिलिटी पाकिस्तान में बनती नहीं है, तो इसलिए फिर मुझे ये कंफ्यूजन भी हो रही थी। मैंने कहा कि मैं नहीं, आपसे ये हम चीज हमारी क्लैरिफाई। वायबिलिटी 28 वीक से शुरू होती है। जी जी। वैसे अगर आप वायबिलिटी लें तो वो 24 वीक्स है। ठीक है, तो ओके। आप यू कैन जस्टिफाई दैट। ठीक है, और ओके। आप अगर आपको एग्जैक्ट गेस्टेशन नहीं पता कि कितने वीक्स पे टर्मिनेट हुई, उससे आप या तो वीक्स पूछ लें या फिर करें। मुझे ये लगता है कि इसकी टर्मिनेशन अर्ली हुई है, जैसे ये नॉर्म, क्योंकि दूसरा बच्चा था ना। जी मैडम, सडन आईयूडी हो गया था ना इसका, ये बच्चा दूसरे वाला भी नॉर्मलेस था। और कहती हैं कि अचानक से मुझे फीटर मूवमेंट्स खत्म हुई, और जैसे फीटर मूवमेंट्स खत्म हुई, आई इमीडिएटली रश टू द हॉस्पिटल। और इन्होंने आकर मेरी कार्डियक एक्टिविटी चेक की तो वो लॉस्ट हो चुकी थी। और उसमें हाँ, भी हमें पहले बताया गया था कि बच्चा आपका नॉर्मलेस है। लेकिन वो बोथ पेरेंट्स रिफ्यूज फॉर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। लेकिन जब आईयूडी हो गया तो देन मेडिकल टॉप फॉलोड बाय, मतलब फिर मेरी मेडिकल टॉप हुई कि उसके ऊपर मुझे यहाँ 3 टैबलेट्स। पे आप हिस्ट्री में पूछ सकती हैं। क्या आपको अपने हमल का हफ्तों का पता था कितने हफ्ते हैं। ओके। ठीक है, तो वो आप और क्लैरिटी हो जाएगी आपको कि अल्ट्रासाउंड हुआ तो उस पे कितने हफ्तों का हमल था। ओके मैडम। यहाँ जी से मैडम आपको जी। अबॉर्शन और पैरिटी का क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, और दोनों ओके ओके। एक्सपल्शन हुई थी। जी मैडम, एक्सपल्जन ही थी, क्योंकि एक तो उसकी इसने वो भी मुझे जो बताया 8 मंथ पे भी उसको ना सडनली घर पे जो है ना कि प्रीटर्म लेबर में शी वॉज लैंडेड इन प्रीटर्म लेबर। एंड टिल रीचिंग टू द हॉस्पिटल शी डिलीवर्ड ऑन द वे टू द हॉस्पिटल इन टैक्सी। ये बात आपने नहीं ना बीच में मेंशन की। ये जो मैंने ना फर्स्ट वाला जो बच्चा इसका बोला ना कि डिलीवर्ड इन टैक्सी, ये मैंने आपको बताया कि शी गिव हिस्ट्री ऑफ टैक्सी डिलीवरी एंड स्टिल बर्थ का मैंने जिक्र किया है मैडम। स्टील बात का किया था। जी जी, टैक्सी डिलीवरी का फ्रीडम भी का बताया कि नहीं, टैक्सी का मुझे रजिस्टर्ड नहीं हुआ। okay, okay. 8 months of gestation age, and she gave history of taxi delivery and still birth तो or यू skeletal हैड अ deformity. हिस्ट्री ऑफ कंजेंटल एनोमलीज, प्री टर्म Okay, डिलीवरीज, आईयूडीज। ठीक है, तो इन चीजों की बेसिस पे ये बात हमें स्टार्ट में पता होनी चाहिए। ठीक है, जी मैडम। ये शी हैड नो लाइव इशू। और प्रेजेंटेशन में हमें ये बात पता होनी चाहिए कि शी हैड रिड्यूस फीटल मूवमेंट नाउ एज वेल, ताकि हमें ये पता हो कि ये, क्योंकि बड़ी कहानी में बड़ी देर बाद मुझे जाके पता चला है ओके इसको मैडम। हमने एडमिट क्यों किया, कि बच्चे भी जिंदा नहीं है और अब डिक्रीज फीटल मूवमेंट्स में है। तो ये आपकी प्रेजेंटेशन के स्टार्ट में ही बात पता होनी चाहिए एग्जामिनर को। ठीक है, जी मैडम। ये एडमिट क्यों हुई है ये आपने वहां पे क्लियरली बताना है। तो आपने फीटल मूवमेंट्स को भी शुरू में बताना है, और जी मैडम। इचिंग को भी बताना है, और बायोडेटा में ये बात बता रही है कि शी हैड नो अलाइव इशू। जी ठीक है, मैडम। ताकि जी हमें हेड नो। क्लैरिटी हो कि आगे चल के कहानी में क्या आना है। ठीक है, तो ये दो अच्छा चीजें मैडम, आपने बिल्कुल स्टार्ट में करनी है। ये वाले जो और वर्ड्स मैडम बोले उनकी, ये जो स्टेटमेंट आपने बताई है कि शी हैड हिस्ट्री ऑफ प्री टर्म लेबर प्रीवियसली इंट्रायूटेराइन डेथ एंड स्टिल बर्थ, इसके लिए मैं इस तरह इसी इस अंदाज से ये सेंटेंस बोलना होगा, या इसको इससे बेहतर किया जा सकता है इन कि शी हैड प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ इस तरह के, या शी हैड रिस्क नहीं फैक्टर, नहीं, इस तरह वो के आप बोलूं? बेशक अपनी कहानी जब ट्राइमेस्टर वाइज या ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री बताएं, इसकी डिटेल नहीं, आप ये उसी में ऑप्टिक्स। ही दें। हाँ, लेकिन नहीं, शुरू ये में जैसे ऑप्टिक्स आपने बताया ना कि शी इज ग्रेविडा थ्री आप पैरा 2, बताएंगे। ठीक है, आपने उसको पैरिटी में डाल दिया ना। जी जी।
ओके ओके। आप हाँ, पैरिटी नहीं होगी ना, एक पैरिटी होगी और एक अबॉर्शन होगा। ओके मैडम, ठीक हो गया। शी इज ग्रेविडा 3 पैरा 1 अबॉर्शन 1 विद नो ओके। अलाइव इश्यूज। विद नो इशू कवर यूं हो बोलें गया। बस, शुरू में बस इतना बोलें। बाकी आपने जो जहाँ पे कहानी सुनाई है वहीं पे ठीक सुनाई है। ओके। सिर्फ स्टार्ट में बायोडेटा में ये बताओ कि शी, एक तो पैरिटी और उसको अबॉर्शन को क्लियर करना है। दूसरा ठीक हो आपने गया। वहीं पे बताना उसके पास जिंदा बच्चा कोई नहीं है। और और ये वाले जो वर्ड्स आपने, ये जो तीन रिस्क फैक्टर्स बताए हैं, कि इसी के साथ बोल दूं कि विद नो अलाइव नहीं नहीं, इशू? नहीं नहीं, वो आप अपनी ओके जहाँ ओके कहानी सुनाई है वहां ठीक सुनाई। ओके ओके ओके, ठीक हो ठीक है। गया ये। एक बहुत अच्छा, ये एक हो गया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने जब ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री में डिप्रेशन का और उसका बताया और इलेक्ट्रिक शॉक्स जिस पेशेंट को दिए गए, उसकी जी जी। मेडिकल डेफिनेटली हिस्ट्री होगी टैबलेट्स की, डिप्रेशन की। अगर वो कोई दवाइयाँ खा रही है डिप्रेशन की तो वो जरूर मेंशन करें, वो नहीं खा रही तो भी मेंशन करें। एक पेशेंट आप मुझे खुद बेटे। बताएं जिसको डिप्रेशन के लिए शॉक दिए गए हों, वो जी जी। साइकोसिस होगा, वो डिप्रेशन पहली बात है नहीं होगा। ओके डिप्रेशन का ट्रीटमेंट इलेक्ट्रिक शॉक नहीं होता, ओके मैडम। वो साइकोसिस होता है जिसमें आप शॉक्स हाँ देते हैं। तो आपने उसको पोस्टमार्टम साइकोसिस बोलना है। मैडम। ठीक है। और अगर वो जी। साइकोटिक में है तो वो डेफिनेटली अभी कोई ट्रीटमेंट साइकोसिस का ले रही होगी। और अगर नहीं ले रही तो और बड़ा रिस्क फैक्टर है। ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको मिस नहीं करना कि वो करंटली कोई एंटी साइकोटिक या करंटली कोई एंटी डिप्रेशन ले रही है या नहीं ले रही। अगर ले रही है तो उनकी मेडिसिन की डिटेल बताइए। और करंट में जब आपको पता चल गया कि जी उसको डिप्रेशन था, तो करंटली आपने उसमें जो ईडनबर्ग स्कोरिंग है वो करनी है। ठीक है। ओके मैडम। आपने ये या मैडम। तो जुमला बने कि पेशेंट विल बी असेस्ड ऑन ईडनबर्ग स्कोरिंग बट देयर वाज नो सिम्टम्स ऑफ एनी डिप्रेशन एट प्रेजेंट। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री में बताई, लेकिन उसको रिलेट नहीं किया करंट प्रेगनेंसी में। ठीक मैडम है। उसने मुझे ये हिस्ट्री दी, ये एक चीज पूछ लूँ आपसे, कि उसने मुझे ये हिस्ट्री दी कि शी वाज she had a positive history of a postpartum psychosis 3 year back after her first child born, and she was under treatment for 3 months with electric shock. और उसके बाद लेटर ऑन, अभी उस टाइम से लेकर अभी तक शी इज करंटली हैविंग नो एज सच एपिसोड्स। तो फिर उसमें मैं इसको क्या लेबल करूंगी, फिर आप इसको ऐसे ही कैसे? लेबल करेंगे ना। शी आफ्टर शॉक ट्रीटमेंट शी बिकम स्टेबल and was not on any antipsychotic drugs. ओके मैडम। ठीक है। And at present there is no sign, there is no symptoms of any depression or psychosis. ठीक है। वैसे पॉसिबिलिटी नहीं होती है वो पेशेंट ले रही होगी कोई ड्रग्स। इतनी जल्दी 1.5 year में इलेक्ट्रिक शॉक वाला पेशेंट ट्रीट नहीं होता। ठीक है। ओके पॉसिबिलिटी मैडम। नहीं है, लेकिन स्टिल अगर आपको नहीं लगता, आपको उसने कोई हिस्ट्री नहीं दी, तो इस चीज को मेंशन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वो ड्रग ले रही है तो डिफरेंट किस्म के रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर वो ड्रग्स नहीं ले रही तो और फैक्टर्स और रिस्क फैक्टर हैं। ठीक है। यानी अगर वो एंटीसाइकोटिक ले रही है तो फिर कोई अनोमलीज की चीज हो सकती है, फिर वो और प्रॉब्लम आईयूजीआर के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है। तो वो एक अलग है। और अगर वो नहीं ले रही तो शी इज एट रिस्क ऑफ अगेन डेवलपिंग द साइकोसिस। ठीक है। क्योंकि इसका रिकरेंस बहुत ज्यादा होता है नेक्स्ट प्रेगनेंसी में। उसने मैडम कहा कि मैंने बच्चे की बहुत टेंशन ली, कि जब मेरा पहला बच्चा इस तरह हो गया, एनॉमलेस बच्चा मैंने पैदा हुआ देखा, और बस मैं तो फिर इस तरह होकर डेफिनेटली अभी डिप्रेशन जब तक में। उसके पास लाइव इशू नहीं है
या उसके पास जब तक वो एक जिंदा बच्चा ठीक सलामत विदाउट एनी अनोमली पैदा नहीं करती, उसका डिप्रेशन कैसे ठीक हो सकता है? और उसने ये भी मुझे हिस्ट्री दी कि मुझे दूसरे बच्चे का एनोमलस ही पैदा हुआ, लेकिन मुझे कुछ डॉक्टर्स ने नहीं बताया कि इसमें क्या मसला है। मेरी फैमिली ने उनको मना कर दिया था कि वो आपने इससे इसीलिए कोई मना जिक्र कर नहीं दिया करना। था ना, क्योंकि वो साइकोसिस में चली जाती है। जी मैडम, ठीक है, तो उन्होंने ये बात यही। जो है ना, हमें शुरू में इस चीज को थोड़ा सा क्लैरिटी मजीद देनी है आपने, ओके। एम्फेसाइज करना है, ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। आपकी ओके पेशेंट मैडम। दोबारा से साइकोसिस में जा सकती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने एंड में आके वेट लॉस की बात की, वो क्यों की थी आपने? मैडम ये जो वेट लॉस हो रहा था, ये मेरे माइंड में चल रहा था उसके डिजीज में ना, कि हेपेटाइटिस, उसकी वायरल हेपेटाइटिस और इन चीज़ों के बारे में मैं सोच रही थी कि शायद इसको इसके साथ शुरू में इसका फिर वेट। बताइए ना। इसको एंड में एक ओके। अलग से जुमला बोला, वो इतना अजीब सा लग रहा था प्रेजेंटेशन में। ओके। ठीक है ना, जहाँ पे आप सोशो इकोनॉमिक स्टेटस बता रही हैं, वहां पे आप वेट लॉस बता रही हैं। ठीक है, तो दैट वो प्रेजेंटेशन में समझ नहीं आई उसकी, कि उसको क्यों इतना आपने आखिरी जुमले में बोला। ठीक है, ओके। उसको कहीं और एडजस्ट करें, या तो आप, मतलब वो समझ नहीं आई वेट लॉस वाली, वो उसको कहीं एडजस्ट करें या बिल्कुल निकाल दें। ओके, बस निकाल देते मैडम, उस हाँ, जुमले को वायरल निकाल हेपेटाइटिस देते। में आपको इचिंग अगर हो रही है तो वेट लॉस इतना नहीं होता उसमें। जी मैडम, उसमें वेट लॉस, इसने वेट लॉस की हिस्ट्री भी नहीं दी कि इसने कहा है कि बस मेरी एपिटाइट जो है वो थोड़ी सी जो है किस तरह था, हाँ, तो आप डिपेंड आपको होती नहीं, वैसे ऑर्डर भी हुई है। प्रेजेंटेशन में वो अच्छा ही नहीं लग रहा ना, कि जहाँ पे आप सोशो इकोनॉमिक स्टेटस बता रही हैं, वहां पे आपने ओके मैडम। अचानक से वेट लॉस का बोल दिया। ठीक है, तो उसको काट दें, वो मत बोलें। अगर बोलना भी है तो कहीं ऊपर जाके बोलें आप, जब आप कहानी स्टोरी सुना रही हैं उसकी ट्राइमेस्टर वाइज या कुछ भी, या जहाँ पे आपने हस्बैंड की टीबी का जिक्र किया है कि चलो वो आप कर लें। ठीक है। मैडम इसमें। इसमें जब जी। आपको डिप्रेशन, साइकोसिस और डिप्रेशन आ जाए, तो फिर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फैमिली हिस्ट्री में आपने डिप्रेशन का भी पूछना है। ठीक है, ओके। यस मैडम। तो अगर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव हो तो फिर इंक्रीज, फर्दर रिस्क इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो जहाँ पे आपने फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कंजेनिटल एनॉमलीज जरूर पूछे फिर। जी मैडम, कंजेनिटल कंसेंगुअस इनोमिक मैरिज, का पूछा था अपने पास। कंसेंगुअस मैरिज तो वन फैक्टर हमेशा। हो गया, लेकिन जी। जो प्लीज कंजेनिटल की कोई फैमिली, हिस्ट्री नहीं थी। हाँ नहीं थी ना, लेकिन आपने मेंशन नहीं किया ना। मैंने उसमें फैमिली हिस्ट्री में ये बोला है कि उसकी नो हिस्ट्री ऑफ एनोमलस बेबीज इन द फैमिली। थैलेसीमिया का भी वहां जिक्र किया, उसी फैमिली हिस्ट्री के अंदर अच्छा, चारों चीजें मैंने बोली गई। शायद रजिस्टर नहीं जी कर मैम। सकी। जी जी अच्छा, एक वो मैम। इम्पोर्टेंट, अच्छा उसके बाद आपके एग्जामिनेशन हिस्ट्री में मैं यही चंद बातें बहुत जरूरी थी, इनको जी जी तरतीब मैम। दें। अच्छा, जी जी। एग्जामिनेशन के ऊपर जो है आपका, ठीक था एग्जामिनेशन, लेकिन चूंकि वो परफॉर्मेंस देखी जाती है, तो इसलिए वो उस पर मैं बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करती, लेकिन जो चीजें आपने बताई वो ठीक थी। ठीक है, जी मैम। और हाँ, उसमें सिंप्लिसिटी फंडालाइट और वो सारा कुछ आपने बता दिया हुआ था। अब वो ठीक था, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी, लेकिन जाहिर बात एग्जामिनेशन तो आपके क्लिनिकल असेस होंगे वहां पे या ऑन द प्रेजेंट। ओवरऑल ठीक, अच्छी परफॉर्मेंस, दो चार चीजों को बस तरतीब दे लें। और जी मैम। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, टाइम मैनेजमेंट। ओके मैडम। अपनी प्रेजेंटेशन को ना टाइमर लगाया करें अपने सामने। मैडम तकरीबन आज कितने मिनट में मैंने कंप्लीट किया था जो आपने आज का आज टाइम अभी नोट किया है आपका कि। ये तकरीबन 13-14 मिनट चले गए थे, तो अगर आप प्रेजेंटेशन में इतना टाइम लगाएंगी तो ठीक नहीं होगा ना, जी। क्योंकि आपके पास आई थिंक 15 मिनट है ना। जी मैडम, उसमें तो फिर पूरा वो करना था ना कि हिस्ट्री पंद्रह और मिनट में पूरा। आपने हिस्ट्री लेनी भी है, एग्जामिनेशन भी करना है, और केस प्रेजेंटेशन भी देनी है, और केस समरी भी देनी है। चार चीजें आपकी 15 मिनट में है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन को टाइम कम करें, ठीक है, थोड़ा
कि आपकी हम्म, प्रेजेंटेशन जो है वो मेरा ख्याल है 7-8 मिनट में हो जानी चाहिए। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसे ही मैडम, तो 7 to 8 हाँ, तो मिनट्स आप में 13 मिनट कंप्लीट। में अपना केस प्रेजेंट कर रही हैं। असल में जितना मैडम वो कुछ चीज़ों में थोड़ी सी वो हो रही थी कि ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, रेपिटेशन वाला भी वो चक्कर था। और सेकेंडली इसमें फ्लो मेरा बहुत अच्छे वाला उस तरह स्पीड के साथ नहीं था, हाँ, मुझे फ्लो कैसे फील फ्लो होता है। को वो इसीलिए नहीं हो रहा ना, क्योंकि अभी टाइम मैनेजमेंट नहीं। वो टाइम मैनेजमेंट आपकी तब आएगी जब आप अपना टाइमर सामने चलाएंगी और आहिस्ता जी मैडम। आहिस्ता उस टाइमर पे 1-1 मिनट। और पता ही, आपको पता नहीं चलता है, आपकी रिपीटिशन आपकी बहुत ज्यादा चीजें खा जाती है। आप हर चीज बताने के चक्करों में ना, जी प्रेजेंटेशन जी में भी बिल्कुल। आपने इंपॉर्टेंट चीजें ही बतानी है। ठीक है। और दूसरा, फिर आप ना प्रेजेंटेशन में सोच रही होती हैं कोई चीज रह तो नहीं गई, कोई चीज रह तो नहीं गई। ठीक है। जी मैडम ठीक हो गया, उस समझ आ चक्करों गया में इसे। आपकी रिपीटिशन भी हो रही होती है, क्योंकि आप रिपीट करती हैं ताकि सोचें कुछ रह तो नहीं गया। जी मैडम ठीक हो गया। ठीक है ना? पहली चीज, अपना टाइमर चलाएं सामने। 13 मिनट आज लगे हैं आपको। और रिपीटिशंस को कम करें और जुमले कंसाइज करने की कोशिश करें। जी दरिया को मैडम। मतलब पूरे में बंद करना है ना, तो थोड़ी सी प्रेजेंटेशन आप आराम से बता सकती हैं। ठीक है। मैडम 1 मिनट, मेरी बेटी रोल जैसे 1 सेकेंड प्लीज। चलिए ठीक है, हम जी। चलें, अब आप मैनेजमेंट फिर सुना दें। जी मैडम सॉरी, मैं असल में ना मैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट की है। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। जी स्कीना बोलिए, आवाज आ रही है जी मेरी? जी 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 आवाज आ रही है। सॉरी मैडम, मैंने इसलिए कहा कि ताकि आपको दिन में आपकी कमिटमेंट्स होंगी, फिर आप बिजी होंगी, तो फिर मैं आ, दोबारा से आपको इतना दे चलिए, पाऊँ। आप मैनेजमेंट एक दफा सुना दें। फिर इसमें आपने जो जी जी आज मैडम। पढ़ना है ना टॉपिक्स, वो आपने जी अपना एक आईयूजीआर को रिपीट करना है। फिर जी आपने मैडम। अपना जो है इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस की गाइडलाइन को देखना है जो नई आई है। जी और मैडम ठीक हो गया। उसके बाद आपने साइकोसिस का टॉक आर्टिकल पढ़ना है और डिप्रेशन का टॉक ओके। आर्टिकल। ये 4 टॉपिक्स फिर आपने इस केस के साथ रिलेट करके पढ़ने हैं, क्योंकि आपका ओके। वाइवा इन 4 टॉपिक्स पर होगा। और एक साथ जी में मैडम। डिक्रीज फीटल मूवमेंट्स की गाइडलाइन। यही चीजें मैडम, मुझे दो चीजों में कंफ्यूजन थी, मुझे डिप्रेशन का को रिलेट भी करना नहीं आ रहा था, और मुझे समझ भी नहीं आ रही कि मैं से वो मैंने पढ़ा था कि डिप्रेशन और साइकोसिस का डिफरेंस, लेकिन मैंने डिटेल में नहीं पढ़ा कि कैसे मैनेज करना है और कैसे इनको वो डिफरेंशिएट सारा करना है, डिटेल, सिर्फ दो जस्ट। दो टॉक आर्टिकल्स हैं। उन दो ओके। टॉक आर्टिकल्स को पढ़ना है और एक अलग से आपने देखना है ईडनबर्ग स्कोरिंग। ठीक है। उसके ओके ये एक वाली 10 क्वेश्चनेयर वाला जो ईडनबर्ग स्कोर है ना, वो ले देखना है। ठीक है। मैडम, ये किस में, ये गाइडलाइन के अंदर डॉक्यूमेंटेड होगा ये हाँ साइकोसिस जी, वाली हाँ में, या जी, हाँ जी। सेपरेटली? टॉक आर्टिकल के ओके। अंदर दिया हुआ है। तो गाइड। ये तो आप अलग से भी सर्च कर लेना, ईडनबर्ग स्कोरिंग, गूगल पे वो ओके आपको मैडम। दे देगा। ईटन ईटन एक अच्छा जो मीडियम है ना, वो परप्लेक्सिटी है, जहाँ पे ना आप अपनी, उसके अंदर जो है ना अच्छा रिसर्च बेस्ड चीजें दी हुई होती हैं। जैसे होता है ना चैट जीपीटी, जी वैसे जी जी। होता है एक परप्लेक्सिटी। चैट जीपीटी भी अच्छी चीजें बता देता है, लेकिन अगर आपने कोई मेडिकल से रिलेटेड अच्छा रिसर्च मटेरियल देखना है, वो परप्लेक्सिटी में बहुत अच्छा आता है। ठीक है। जी मैडम।
तो वो आप उसको देखें, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलें अब मैनेजमेंट आप सुना दें फिर। मैडम समराइज कर दूं पहले? हाँ, समरी सुना लूं समराइज तो? समराइज भी करें और रिस्क फैक्टर भी बताएं। ओके। Laiba Wajahat, 24 years of age, with last year born 1.5 year back, with no alive issue, with history with risk factor of one stillbirth, with risk factor of one stillbirth at 8 months of gestation age, and with history of IUD at 6 months, and both babies were anomalous. And presented with a complaint of decreased fetal movement since 2 days, and itching of arms and of hands and soles of feet since 2 weeks. On examination, there are no signs of abnormal rash appreciated, but signs of mild scratch marks were seen on skin of hand joints and skin between the hand fingers, and no jaundice were appreciated. Her physiofundal height was 24 centimeter, single alive fetus with breech presentation. Clinically, LICA seems to be adequate. On her investigations, it shows oral glucose tolerance test was deranged. Her fasting was deranged, that was 109. And serum bile acids were done and labs awaited, and her serum ALT level was 277. समरी में तो ये And बात नहीं ना बताएंगी। अच्छा, नहीं, इन्वेस्टिगेशन की बात यहाँ नहीं करनी कि इन्वेस्टिगेशन में पॉजिटिव आप इन्वेस्टिगेशन। देखिए, जब केस समरी जो है वो सिर्फ हिस्ट्री और एग्जामिनेशन पे डिपेंडेंट होती है। ओके। एक लफ्ज इन्वेस्टिगेशन का पार्ट तो ओके। बाद में आता है केस समरी के। अच्छा मैडम, वो ऐसे मैडम ने बताया था कि सिंपल सी। आपने एक स्टेटमेंट आपने एग्जामिनेशन के फाइंडिंग्स के पॉजिटिव बता दें या इम्पोर्टेंट नेगेटिव देखिए, भी बताएं, अभी जो मतलब फिलहाल एक लाइन आपने ज्यादा। केस समरी जो जी बतानी है ना, अगर तो जी जी। आपको पेशेंट ने इन्वेस्टिगेशंस दी हैं हिस्ट्री में, फिर तो आप वो बोलें। केस ओके समरी में तो आपने 2 लाइनों में सिर्फ अपना केस बताना है क्या। ओके लैब्स तो बाद में आती हैं। ओके फाइन मैडम, ठीक हो गया। ठीक है, लैब्स का डिस्कशन तो बाद में शुरू होगी, वो केस समरी में लैब्स नहीं आती। हाँ, अगर पेशेंट ने आपको कोई लैब इन्वेस्टिगेशंस बताई हैं कि जी मेरी टेस्ट हुए थे दैट वाज नॉर्मल, उसको आप मेंशन कर सकते हैं। या अगर ओके पेशेंट ने आपको कह दिया मेरे बाइल एसिड्स हुए हैं जो डिरेज रहे हैं, फिर आप बात कर सकती हैं। लेकिन केस समरी के अंदर ये नहीं बताना। उसमें सिर्फ आपने थोड़ा सा बायोडाटा बनाना है, सारी पॉजिटिव फाइंडिंग्स हिस्ट्री की बता के, और पॉजिटिव फाइंडिंग्स एग्जामिनेशन की बतानी है। इन्वेस्टिगेशंस अभी नहीं आएंगी इसमें। ओके हाँ, अगर आपको पता है ड्यूरिंग हिस्ट्री टेकिंग, तो फिर आप उसको मेंशन एक लाइन में एंड पे कर सकते हैं, लेकिन वो एंड में इतनी डिटेल में नहीं। पहले अपनी हिस्ट्री तो पूरी कर, हिस्ट्री की फाइंडिंग, एग्जामिनेशन की फाइंडिंग्स तो बताएं। मैडम, ये जो समरी होती है वो इस तरह नहीं हमने प्रेजेंट करनी होती। वन ऑफ माय कलीग टेल टू मी के आपने जो है कि पूरा जो, मतलब कि आपको एग्जामिनेशन के बाद आप उससे इन्वेस्टिगेशन जब मांगते हैं और वो आपको देते हैं, और उसके बाद आपको वो 4 to 5 मिनट्स या केस थ्री समरी मिनट्स में देते नहीं हैं। आते, वो केस समरी में आप नहीं एक आता। समराइज वो केस समरी कर के दीजिए। बाद इन्वेस्टिगेशंस में आती है पार्ट। केस समरी में अगर ओके तो एग्जाम, केस समरी इज ओनली हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन। ओके वो डिस्कशन इन्वेस्टिगेशंस में आ जाती है। वो फिर आपको 2 से 3 मिनट देंगे अलग से। अगर कोई इन्वेस्टिगेशंस नहीं है तो आपने इन्वेस्टिगेशंस तो करानी है, वो अलग डिस्कशन होनी है। तो ओके। केस समरी में सिर्फ आप हिस्ट्री और एग्जामिनेशन की पॉजिटिव फाइंडिंग बताइए। फाइंडिंग्स बतानी है, हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन। ओके मैडम। आप मैडम नाहीद से भी एक दफा पूछ लीजिए वो। क्योंकि मैडम, वैसे मैडम नाहिद का भी ये पैटर्न है कि उन्होंने हमें ये बताया हुआ है कि एक लाइन आपने उसकी हिस्ट्री की बतानी है, कि मतलब एक लाइन के अंदर प्रेजेंटिंग कंप्लेंट बोल दें कि उसका क्या मसला था। एक हम्म। लाइन पॉजिटिव की आपने एग्जामिनेशन की, और अगर उसकी इम्पोर्टेंट, अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई पर्टिकुलर ऐसी चीज है कि उस केस से रेलेवेंट,
कि लाइक आप जैसे इस पेशेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ बाइल एसिड पे मुझे कमेंट करना और सिर्फ एलएफटीज उसके करंट बताना कि ये कितने मुझे रेंज सिर्फ है। आप ये बताएं कि Important- आपको जब इन्वेस्टिगेशंस पता होंगी तो फिर होगी ना, अभी तो आपने इन्वेस्टिगेशंस की बात ही नहीं की है हमने। ओके। जहाँ मैडम यहाँ हमारी हिस्ट्री कंप्लीट होती है तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बात नहीं शुरू हो जाती कि विच इन्वेस्टिगेशन यू वुड लाइक टू परफॉर्म, फिर मतलब ये क्या आप ये करना केस चाहेंगे। स्टडी के बाद शुरू नहीं होती। इन्वेस्टिगेशन अमूमन पहले बताई जाती हैं और उसके बाद फिर मैडम कहती हैं कि नाउ समराइज योर केस एंड प्रोसीड फॉर द ओके, मैनेजमेंट। अगर आपके इस लॉन्ग तरीके। केस में पैटर्न जी जी। इन्वेस्टिगेशंस पहले है तो फिर जी जी। आप केस समरी मुझे बाद में सुनाए, पहले इन्वेस्टिगेशंस बताएं। इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल ऐसा ही होता है मैडम, पहले इन्वेस्टिगेशन फिर उसके बाद मैडम कहती है कि हाँ, ओके तो आपने जब अपना सेकंड पार्ट केस। शुरू करना है तो उसमें पहले अपने मुझे इन्वेस्टिगेशंस बतानी है कि ये इन्वेस्टिगेशंस हुई हुई हैं और ये अवेलेबल है, क्योंकि ये केस मेरे पास तो नहीं ना, आपके पास ही है। तो आपने अगर बिल्कुल। समराइज करना है तो फिर आपने इन्वेस्टिगेशंस के बाद समराइज करना है। ओके लेकिन मैडम अगर ठीक आपने हो गया हिस्ट्री और आपसे। एग्जामिनेशन के बाद समराइज करने को कह रहे हैं तो उसमें फिर हिस्ट्री और एग्जामिनेशन आएगा। लेकिन अगर आपसे वो समरी इन्वेस्टिगेशंस के बाद पूछ रहे हैं तो फिर आपने इन्वेस्टिगेशन सारी बतानी है, ठीक है। तो पहले तो आप करें ठीक है डिस्कस अपनी आपसे बात। इन्वेस्टिगेशंस। ओके मैडम, I would like to do her baseline investigation, including complete blood count and complete blood count, blood अब giving. आप खुद ही बताती जाइएगा साथ साथ। Okay, madam, ठीक हो गया। Complete blood count shows a total leukocyte count of 8,000. हीमोग्लोबिन पहले। Okay, hemoglobin is 11 gram per deciliter. WBC count is 8,960, and platelet count is 3 lakh 37,000. Her blood group is O positive, and her urine routine examination shows glucose ब्लड का मैडम आप समझ नहीं आ रहा कि उसमें ब्लड उन्होंने पॉजिटिव प्रोटीन्स वर नेम एंड शो +1 ग्लूकोज बोलना होगा मैडम, ये नहीं समझ आ रहा कि ग्लूकोज को कैसे इंटरप्रेट करूंगे। वो ब्लड इन यूरिन था तो उसमें पॉजिटिव उन्होंने डाला हुआ है। ठीक है एंड ना, देयर वर ग्लाइकोज यूरिया 1+। नहीं, ग्लाइकोस यूरिया नहीं है मैडम, ब्लड था उसके अंदर, ब्लड के आके उन्होंने पॉजिटिव का साइन डाला हुआ है कि ब्लड इन यूरिन का। हाँ तो जैसे ये वो। ठीक है ना, हिमाचूरिया कर दें 1+। ओके ओके, +1 एंड epithelial cell 15 to 20 and pus cells were 4 to 6 and her 4 to 6 पस सेल्स हैं regarding her तो फिर ब्लड क्यों आ रहा है? pus cells भी हैं मैडम और एंड आरबीसी 4 to 6 भी हैं माइक्रोस्कोपी पे। चलें ठीक है। ओके फिर ब्लड ना ना बोलें, फिर आप आरबीसीज बोलें। ओके, आरबीसी कास्ट बोल दूं, सिंपल आरबीसी कास्ट इस तरह के बोल दूं कि आरबीसी कास्ट 4 to 6 एंड epithelial cell हाँ, 15 to जैसे 20 आप ये and एंड pus पे cell बोले 4 ना to आपने, 6। पस सेल्स आर 4 to 5, 4 to 5, epithelial cells is this and आरबीसी। आरबीसी। ठीक है, फिर ब्लड ना बोलें। ओके ओके, वो ऊपर वाला जो मैंने बोला वो मैंने उसकी रूटीन एग्जामिनेशन वाले फाइंडिंग्स बोल दी थी। हम्म। And then her hepatitis B surface antigen and antibodies to the HCV antibodies are negative. Her HIV testing was not done, and her blood sugar fasting and 1 hour postprandial was not available, and her random blood sugar was which was done, which was 84 milligram per deciliter. And this was the regarding her baseline investigation and 184 regarding है, 84 है। simple 84 है मैडम, ग्लूकोज रैंडम। ठीक है, आगे चलो। Okay, and regarding a specific investigation, her dating ultrasound was done, and which was उसमें डेटिंग अल्ट्रासाउंड को बताने की जरूरत तो नहीं है ना मैडम, कि बस सिर्फ बोलती जाऊँ कि उसमें स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या होगा। जी जी, बोलती चाहिए। जी जी। Her dating ultrasound was done, and anomaly scan was also done, which was normal, and there was no obvious gross gender anomaly was not seen. And next is ma'am,
Next, serum bile acids were also done, and lab was awaited. And her fresh serum liver function test shows a serum ALT of 240, 277. Serum alanine transaminase level were 277, and SGOT was a 130. And her ultrasound, अब ये SGOT मैडम आप जो मेरे केस, इसको पूरा बोले, एल्कलाइन फॉस्फेटेस और एल्कलाइन ट्रांसएमिनेजेस। ओके ट्रांसएमिनेजेस में अल्कलाइन, आगे आपके वो दोनों आते हैं, ठीक है। okay, alkaline transaminases, transaminase was 130. हम्म। ओके। और मैडम फिर उसमें ना इसका जो है कि इन्होंने इस केस से पर्टिनेंट मुझे नहीं समझ आई कि इन्होंने अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन प्लस पेल्विस भी पेशेंट का करवाया हुआ था, लेकिन आप तो मुझे इसका लिवर को लिंक नहीं इसके देखना, साथ, लिवर भी तो देखना है ना। लिवर की पोलिस पैथोलॉजी मैडम, कोलिस्टेसिस की अगर हिस्ट्री होती है, अगर वो होता गाल स्टोन्स वगैरह अगर सिग्निफिकेंट होते तो तब फिर हमें नहीं करवाना चाहिए था। नहीं नहीं, अब दोनों। मैं इसको जस्टिफाई कैसे कर सकती हूँ कि अगर इंट्रापैटिक अल्ट्रासाउंड, कोलिस्टेसिस के अंदर आपका लिवर स्कैन होता है। okay, liver scan, ultrasound abdomen plus pelvis, which आपने was लिवर को, लिवर का normal. एको टेक्सचर देखना होता है। दूसरा आपने देखना होता है गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं या नहीं है। Okay, madam. Ultrasound abdomen plus pelvis, which was normal. No पेल्विस तो significant नहीं finding होगा was ना seen. मुझे, पेल्विस तो नहीं होगा ना, पेल्विस में तो अभी ऑप्स पड़ा Okay. हुआ है ना। लेकिन उन्होंने कि दोनों किए हुए हैं, इसके ऊपर उन्होंने डॉक्यूमेंट किया था, तो मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं इसको नहीं नहीं, कैसे वो वो बस बोलूँ कि मैंने। एडिनेक्सस पे कमेंट होगा, पेल्विस के अंदर तो इस वक्त बच्चा है ना। जी मैडम। इस वक्त पेल्विस में बच्चा है, आपने उन्होंने कमेंट किया, बस उसको छोड़ देना। आप ना उन्होंने गलत किया, आप ना गलत करें। ओके ओके ओके, तो यही मैडम मैं यही करेक्शन हाँ, करना चाह बस रही थी। आपने सिर्फ एक लिवर को करना है। लीवर के ओके बारे में बताना है कि जी मैंने देखना है एब्डोमेन में लिवर को, स्टेटस को, ठीक है। ओके। और किडनीज को, क्योंकि लीवर, पस सेल्स और यूरिन ओके। वो आ रहा है, तो आप KUB को देख लें, ठीक है। फिर कोई इसमें लिखा हुआ हाइड्रोनेफ्रोसिस। मिनिमल फुलनेस ऑफ बायलैटरल पेल्विक कैल्शियल सिस्टम, बस ये लिखा हुआ ड्यू टू ये कैविटी। लेक्चर कर, क्योंकि जब आपके ऊपर ओके यूरिन में RBCs बता दी है ना, तो फिर हमें KUB देखना पड़ेगा, ठीक है। जी मैडम। हम्म। एंड बस बाकी मैम यही पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन है कि जो हमारी इस केस से रेलेवेंट है, दैट्स इट मैम। बाइल एसिड नहीं हुए हुए। सीरम बाइल एसिड सबमिट हुए हैं, लैब नहीं आई मैडम, वो कल ही गए हैं, और वो कह रही थी कि आफ्टर 48 आवर्स के बाद ये रिपोर्ट आती है, प्रोबेबली आज संडे को आ जाएगी या कल मंडे मॉर्निंग में आएगी। और वो चलो टेस्ट इन्होंने कहीं बाहर सबमिट करवाया, हॉस्पिटल के अंदर नहीं हुआ हुआ। ठीक है। चलिए अब मैनेजमेंट जी। सुना, मैनेजमेंट हाँ लाइन मैंने मुझे बता देना, ताकि मुझे क्योंकि इस पे आपका ना वाइवा ज्यादा होना है मैनेजमेंट में। ये जी जी केस मैडम। अगर इस तरह का कोई केस आता है ना, तो इसमें वो आपसे ना सही आपको घुमाएंगे यस पूरी, मैडम, ये आपसे बहुत कोलिस। डिफिकल्ट केस है। हाँ, इस पे आपसे पूरी हाँ हेपेटिक कोलिस्टेसिस की गाइडेंस, क्योंकि इसमें उन्होंने चेंज करते रहना है। उन्होंने किसी टाइम पे बच्चे को IUGR कर देना है, किसी स्टेट पे जाके उन्होंने, ये वाइवे वाला केस है। मैनेजमेंट इसमें आपकी इतनी नहीं चलनी है जितना आपका वाइवा चलना है इसमें, अगर ये मैडम, केस। लास्ट टाइम मेरी, जी जी, इसी तरह सेम केस हमारे वार्ड का था, और इसी तरह मेरी एक कोलीग थी, उनका ये आया हुआ था ना, इंट्राहेपेटिक वाला कोलिस्टेसिस वाला। उसको उसमें शी वाज नॉट एबल टू क्लियर दैट एग्जाम, तो उसमें वो कह रही थी कि उन्होंने ना, एग्जामिनर ने फीटल सर्वेलेंस के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रही थी, हाँ। और वो कह रही थी कि मतलब मैं फीटल की चार्ट काउंट दूंगी पेशेंट को, मैं CTG करूंगी। उन्होंने कहा कि तुम कैसे CTG PD में इसका करोगे, ये मेरे कुछ कंसर्न है। इसकी सर्विलेंस अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर पे होनी है। ये ओके तो बेबी है ही नहीं फीटल की काउंट वाला, ओके ठीक है ना, क्योंकि जिसके दोनों बच्चे मर गए हों, स्टिल बर्थ हो गई हो, IUD हो गई हो, अब इंट्रापैटिक कोलिस्टेसिस में वो चली गई है, और फिर डिक्रीज फीटल ओके मूवमेंट के साथ भी आ गई है, तो इसका तो अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर से सर्विलेंस शुरू होनी है। ओके तभी तो मैंने आपको कहा है कि इसमें आपने वो सर्विलेंस सारी IUGR वाली ही बोलनी है, ओके ओके मैडम, आप समझ आ गई। ठीक तो है। ओके आप, इसके अंदर ओके मैनेजमेंट से ज्यादा ना आपका वाइवा चलेगा। अब मैं आपको सवाल बता देती हूँ वाइवास के कैसे होंगे इसके। जी 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 मैडम, जी पहले जी। तो पूछेंगे व्हाट आर द रिस्क फैक्टर इन योर पेशेंट। श्योर मैम। वो आपका सबसे पहले आ जाएगा नो अलाइव इशू, स्टिल बर्थ, IUD,
in suspicion of intrahepatic cholestasis as LFTs are deranged and itching, और उसके बाद आपकी डिक्रीज फीटल मूवमेंट्स, और हिस्ट्री ऑफ साइकोसिस इन प्रीवियस प्रेगनेंसी। जी मैम। ठीक है, सो ये तीन आपकी और कंजेंटल एनोमलीज। ठीक है, ओके मैम। फिर आपने जी इन मैम। सारे रिस्क फैक्टर्स को जहन में रखते हुए अपनी मैनेजमेंट प्लान करना है कि उसको एडमिट करना है, उसकी इन्वेस्टिगेशंस करनी है, उसका डॉपलर स्कैन करवाना है। ठीक है, और न्यूनेट फीटल मेडिसिन वालों को भी इन्वॉल्व करना है अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो। फिर उसके बाद उसको टेबलेट अरसो शुरू करवानी है, डाइऑक्सी। ठीक है, उस अरसो के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो हमने किस किस डोज में स्टार्ट करानी होती है। ठीक है, और लोकल आपने मैडम, एप्लीकेशन, लोकल एंड लोकल सूदिंग लोशंस वगैरह उसको देने हैं। ठीक है, और उसके अलावा एंटी हिस्टामीन्स उसको दी जा सकती हैं। ठीक है, माँ जी के लिए मैडम। तो हम सिर्फ ये करेंगे, और साथ में उसका वीकली बाइल एसिड करवाते जाएंगे। ठीक है, एलएफटीज भी और बाइल एसिड भी। माँ की सर्विलेंस ऐसे चलेगी, बच्चे की सर्विलेंस अम्बिलाइकल आर्टरी डॉपलर आप करवाते जाएंगे। ठीक है, 4 वीकली मैडम ये होगी। 4 वीकली, ओके। अभी 4 वीकली, 26 वीक्स पे है ना। ठीक है, जी एक तो मैडम। आप उसकी ग्रोथ को मॉनिटर करेंगे, फीटल फीटल मूवमेंट्स की काउंट चार्ट से मॉनिटरिंग करेंगे, और दूसरा आप 4 वीकली अम्बिलाइकल आर्टरी डॉपलर करेंगे। ठीक, अभी इसमें सीटीजी का रोल नहीं आएगा, यस 28 वीक्स के बाद हम कार्डिक वो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सीटीजी अभी नहीं बोलना। लेकिन मैडम अगर एग्जामिनर आपको इस चीज पे बहुत ज्यादा वो कर रहा है कि आप जो है कि आप ये बताएं कि आप वार्ड में उसकी सीटीजी, अगर लेट्स सपोज ये पेशेंट मेरा अगर आप उसका थर्टी वर्ड टू या थर्टी सीटीजी फोर ना ना बोले, आप ओके उसको फिर बोले क्या बोलूं? फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग बाय हैंड हेल्ड डॉपलर, और इफ सीटीजी ओके मशीन इज अवेलेबल। आप जब ओके सीटीजी बोलते हैं ना, उसमें आपने फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग करना है। वो कहेंगे आप हैंड हेड डॉपलर से भी कर सकते हैं, या आप अगर मशीन समटाइम मैडम वार्ड में अवेलेबल होते तो हम उसमें फीटल हार्ट सुन लेते हैं। लेकिन जब आप एग्जाम में उस पर बोलते हैं फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग बाय हैंड हेल्ड डॉपलर इफ अवेलेबल और विद सीटीजी। ठीक है, वो सिर्फ सीटीजी वो वाली आपकी होती है जिसमें आपने, सीटीजी जब आप बोलते हैं ना तो उसका मतलब ये होता है कि वो 10 मिनट का ट्रेस। ओके। लेकिन आप सिर्फ अगर बोलेंगी ना फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग, ठीक है, तो कैसे करोगी जी? फीटोस्कोप से भी कर सकते हैं, हैंड हेल्ड डॉपलर से भी कर सकते हैं, और समटाइम्स सीटीजी मशीन अवेलेबल होती है तो हम उसी से ही देख लेते हैं। जब आप वर्ड सीटीजी बोलते हैं तो उसमें फिर आता है कि 10 मिनट्स का ट्रेस निकालना है। और मैडम ये हम इस बात को ऐसे अपने जस्टिफाई कर सकते हैं कि फीटर के एक चार्ट काउंट हम पेशेंट को देंगे? बिल्कुल, अगर फीटर वो की कह रही थी काउंट आउट कि तो एक तुरंत बेसिक उनको ये चीज है पता ना। चलता कि हाँ, इतने ज्यादा पेशेंट वार्ड में होंगे और आप इतनी मॉनिटरिंग कैसे करोगे इस पेशेंट की? इसमें तो तो रिस्क ऑफ इसीलिए तो स्टिल आपको बर्थ जो मैंने है कहा ना, वो। या तो मैडम हम फीटोस्कोप से देख सकते हैं, या हम हैंड हेल्ड जी। डॉपलर से देख सकते हैं, और साथ में ओके। फीटल की काउंट चार्ट्स, तो उसको आप वर्ड बस। बोलेंगे फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग, ओके फीटर पॉकेट और उसके आप ये मॉनिटरिंग। 3-4 मेथड्स बता सकते हैं। ठीक है, एक चार्ट तो देना ही देना है उसको। ठीक है, जी मैम। अच्छा, उसके बाद उसको थोड़ी सी डाइटरी मॉडिफिकेशन, हेल्दी डाइट के बारे में जरूर बताना है। ठीक है, कि आपने फ्रूट्स जी मैम। वगैरह लें, हेल्दी डाइट लें। ठीक है, जो भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड है आप अ, वो लें। इसमें अनीमिया को जरूर देखना है, ये ना पेशेंट अनीमिया डेवलप कर रही हो। ठीक है, तो ये चीजें देखने, फिर 28 वीक्स के ऊपर उसका आपने ओजीटीटी परफॉर्म करना है, डॉपलर परफॉर्म करना है, सीबीसी करना है। ठीक है, एलएफटीज तो बाइल एसिड्स तो उसके वीकली चलते रहेंगे। ठीक है, अब आपने इसमें बताना है कि अगर तो सारा कुछ उसका ठीक रहता है, जो कि नहीं रहेगा उसका। ठीक है, क्योंकि इतने देर ये पेशेंट बहुत ज्यादा हुई हो तो 34 वीक्स तक जाते हैं। लेकिन आपने यही कहना है कि आई विल कंटिन्यू फीटो मैटरनल सर्विलेंस by maternal surveillance by LFTs and bile acid, and fetal surveillance by umbilical artery Doppler.
and time of and mode of delivery depend on the reports of bile acids and umbilical artery doctor, ठीक है। आप फिर आगे अब वो वाइवे में क्या क्या पूछ सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। वो सारी गाइडलाइंस में से कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। वो आपको 28 वीक्स पे आईयूजीआर दे दे, और वो आपको बाइल एसिड्स जो है वो वैल्यूज देना शुरू कर दें कि जी आप उसकी 55 वैल्यू है तो क्या करोगी, 99 वैल्यू है तो क्या करोगी, ठीक है। सो ये आपको अकॉर्डिंग टू द बाइल एसिड टाइम ऑफ डिलीवरी पता होना चाहिए, ठीक है। लेस देन 40 पे हम टर्म तक ले जा सकते हैं। 40 से 99 तक जो है वो आपने 37 पे कर देना है, और अगर मोर देन 40 है तो 35 to 36 पे डिलीवर कर देना, ठीक है। अच्छा मैडम, इस पेशेंट का ओजीटीटी भी डिरेंज था, इसको मैं कैसे वो करूंगी कि अब इसका एक हो चुका था और उसमें फास्टिंग लेवल्स के डिरेंज आए हैं, तो इसके ऊपर हम इसको वो फास्टिंग लेवल कर लेवल सकते हैं कितने आए हैं? कि मैडम इसके फास्टिंग लेवल्स थे 109। तो ठीक है, बॉर्डर है 110 है अब तो। फास्टिंग 1 आवर फास्टिंग मैडम, वो इसका जो है कि वो लेस देन 92 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रेफरेंस उसमें है, और 109 इसका आया हुआ है, तो हम इसको नहीं, फास्टिंग डिरेंज बता ओजी रही हैं आप या 1 आवर पोस्ट पेरेंडियल? फास्टिंग फास्टिंग मैडम, तो फास्टिंग की 92 से फास्टिंग। लेके 110 तक रेंज है। ओके, रेंज में लाइक उस तरह फिगर आउट नहीं करना आगे, लेकिन वैसे आपको मेरे माइंड में ये वैसे बात आ रही थी कि माई लेस देन पिछली से 92 होना चाहिए। आप उसकी जो है जी ना जी रेंज पढ़ें। अब जो फास्टिंग की रेंज वो देते हैं ना, वो 92 जी जी। मिलीग्राम से लेकर 110 तक है, रेंज में देखे ना। यस, ओके इसको आप रिपीट जरूर करेंगे, ठीक है। ओके, रिपीट करिए, मेरे प्लान में होगा कि हम हाँ, रिपीट लेकिन आप करेंगे उसको इसका। डाइटरी मॉडिफिकेशंस बता देंगी। देखिए मैडम, ये हो सकता है कि अगर वो मुझसे ये पूछना शुरू हो जाए कि इस बच्चे में क्या रिस्क थे, कि जो उसके पिछले बच्चे जो आईयूडी हुआ और इस तरह के, तो उसमें हो सकता है कि शी मतलब वाज अनडायग्नोस्ड ऑफ नहीं डायबिटीज। नहीं 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 नहीं, आपके पेशेंट के अंदर आईयूडी की ऑब्वियस लीजन कंजेनिटल अनोमलीज है, ओके ठीक है। ओके अंडरलाइंग मैडम। डायबिटीज तो अंडरलाइंग डायबिटीज तो आपको बीएसआर से पता चल गई कि फास्टिंग उसकी ठीक आ रही है, ओके ठीक है। ठीक, ओके ओजीटीटी मैडम। इम्पेयर्ड होना और डायबिटीज गेस्टेशनल डायबिटीज डायग्नोज होने में फर्क है, और दोनों की मैनेजमेंट ओके बिल्कुल डिफरेंट है, ओके ओके मैडम, ठीक है। ठीक हो गया। एक इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस है, उसको सिर्फ हम डाइट पे रखते हैं, ठीक है। उसको हम कोई ट्रीटमेंट नहीं शुरू करते, हाँ उसको रिपीट हम कर लेते हैं 28 वीक्स के ऊपर भी, ठीक है। ओके मैडम। और उसको डाइटरी मॉडिफिकेशंस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज और ये बताते हैं, ठीक है। उसको कभी भी कोई ट्रीटमेंट नहीं देना होता, ओके मैडम। ठीक है। देखिए मैडम, इसका जो पहला बच्चा हाइड्रॉप हुआ है, इस पे भी तो वो मुझसे पूछ सकते हैं कि हाई, मतलब जेंटल जिस तरह उसने एनोमलीज की बताया वजह कि। से, वो ऑब्वियसली बात है। ओके हाइड्रॉप्स बच्चा जो है वो किसी एनोमली की वजह से हुआ है, ओके, ठीक है। ठीक हो वन गया। ऑफ द कॉज ऑफ ठीक। हाइड्रॉप्स इज कंजेंटल एनोमलीज, वो आपने खुद बोला है। ओके ओके, ठीक हो गया। में एक ऑब्वियस ये मेरे। रीजन नजर आ रही है, ठीक है। ठीक है, तो जी मैडम, तरतीब से ठीक हो। आपने मैनेजमेंट में ये चला। इस केस में मैनेजमेंट इतनी नहीं होगी जितना वाइवा होगा। ओके वो आपको मतलब बस वाइवा ही पूछेंगे, आपको डिलीवरी तक नहीं ले जाने देंगे इस केस को। बीच में रुक रुक के मैडम। आपसे वाइवा पूछेंगे, क्योंकि ये केस ऐसा है ना। मैडम वाइवा के क्वेश्चंस आपने अभी बताने थे, तो हमने मैनेजमेंट आपने हाँ, मुझे बताना शुरू कर वही मैं दिया कि आपको वाइवा बता के दी, क्वेश्चन आपने। यही बता रही थी आपको कि इसको आप एक तो इसकी सर्विलेंस कैसे करेंगे, मैटरनल सर्विलेंस, फीटल सर्विलेंस के बारे में बात होगी, और यही ओके ये। ओटीटीटी के बारे में बात होगी आपसे। और फिर वो ये आपसे जो मैंने बताया कि जी कितने पे डिलीवर करेंगे, कितने पे डिलीवर करेंगे बाइल एसिड्स, और उस पे आप मैनेजमेंट डिपेंड करती है, ठीक है। विद फिर वाले उसके सेट्स, बाद ठीक हो इसकी गया। साइकोसिस पे, ईडनबर्ग पे बात हो सकती है, वो आपने स्कोरिंग इसकी बतानी है, असेस करना है इसको दोबारा से साइकोसिस के लिए और उसके लिए, ठीक है। कीप हर एडमिटेड, ठीक है।
और जी मैडम। मोड ऑफ डिलीवरी जो है वो आपने रिस्क होता है फीटल डिस्ट्रेस का, तो लो थ्रेशोल्ड फॉर सिजेरियन सेक्शन रख के नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल देना है, ठीक है। और अगर ये बेबी IUGR होता है तो फिर तो आप उस पे वो भी सिजेरियन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि वो वाइवा कहाँ पे लेकर जाते हैं, ठीक है। तो इसको जी बड़े ध्यान के साथ टेक्निकली हैंडल करना है, ठीक है। इसके जी अंदर मैडम। कोई एक फिक्स हार्ड एंड रूल नहीं होगा इस केस के अंदर, ठीक है। ये केस जो है आपको एग्जामिनर किसी तरफ भी ले जा सकता है, ठीक है। ठीक है, देखने में जी लगता है कि बड़ा आसान सा केस है, लेकिन बायवे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दिस इज अ डिफिकल्ट केस, क्योंकि इसका वाइवा बहुत मैडम, ज्यादा है। सादे सादे अगर मैडम। हाइपरटेंशन के केस होते हैं ना, उनमें टक टक जी टक 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 बातें होती हैं। बट जो इस तरह के केसेस है ना, जिसके अंदर एक अजीब सी खिचड़ी पकी हुई है चीजों की, उसमें वाइवा ज्यादा होता है। जी मैडम। तो इसमें आपका जो वाइवा है ना, ये 5 जो आपकी मैंने बताई है ना गाइडलाइन, इन्हीं में से निकलेगा। और इन्हीं की जो वो क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं ना, व्हाट इन्वेस्टी, जो ऊपर गाइडलाइन के क्वेश्चंस है ना, वही वाइवा क्वेश्चंस होते ओके, समझ आती हैं, ठीक मैडम। है। ये अब आप गाइडलाइन को इस लिहाज से पढ़ें, ये जो ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है ये मेरे एग्जामिनर का क्वेश्चन होगा। ओके। इवन फीटल मूवमेंट्स के ऊपर भी जो वो लिखे होते हैं ना, व्हाट इन्वेस्टिगेशन यू विल डू, एग्जैक्टली वही वही आपके वाइवा क्वेश्चंस हैं सारे, ठीक है। जी मैडम। तो अब आप इनकी ये आज आप ये टास्क करें कि आप ये सारी गाइडलाइंस कोशिश करें कि गो थ्रू हो के अपने पॉइंट्स मैनेजमेंट आप अपनी देख लें, क्योंकि इसमें मैं आप ये नहीं कर सकती हैं कि मैं ये करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं ये करूंगी। ये एग्जामिनर ने आपसे आगे क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है इस केस में। बाकी आपकी जो जिस फ्रेंड ने दिया था, उसका इस तरह का पर्टिकुलरली से उससे वाइवा क्वेश्चंस पूछ लें, श्योर मैम, ठीक हो गया। कि अगर आपको कोई क्वेश्चन याद है तो मुझे मैसेज कर दें, ठीक है ना। तो फिर आपको एक तो वहां से भी आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्वेश्चन पूछा था, और अगर कोई आपको लगता है कि ये मुझे नहीं समझ आ रहा कि इसका क्या आंसर होना चाहिए, तो वो आप मुझसे पूछ लें, ठीक है। जी मैडम, ठीक हो। हाँ, चले ठीक है, थैंक यू फिर सो अब मच। पढ़े आप, थैंक यू ठीक है। मैडम। थैंक यू सो मच मैडम, जज़ाकल्लाह वेलकम। for your giving me this time of, especially on weekend. कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। Allah Pak bless you, man. Thank you so ओके, much once थैंक यू सो again. मच, ओके, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.